Hello students, welcome back to Tuition Masters, and today we are here with doing a maths marathon session 2, and in today's video we are going to discuss the geometry parts. Okay, आपके मैथ्स के सिविल से जो ज्योमेट्री के पार्ट्स है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्री चैप्टर्स डिस्कस करेंगे. ओके, ट्रायंगल, सर्कल्स एंड एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, ये तीनों चैप्टर्स को हम डिस्कस करेंगे. क्विक हम रिवीजन कर लेंगे along with the questions. So make sure to like this video, share with your friends and subscribe करो चैनल को. If in case you did not see our previous video जहाँ पे हमने algebra के सारे questions किए थे, so make sure to check the I section. So let us start with a triangle. सबसे पहला चैप्टर है आपका in geometry of triangles. So now see, I'll quickly show you some slides, okay, and we will study from them. See, first of all, पिछले साल आपने ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को पढ़ा. Isn't it? You study how can we prove two triangles congruent. Congruent मतलब they have exactly shape, size, everything is same. Correct? In this year आप पढ़ते हो similarity. Isn't it? So when do we say two polygons are similar? When the corresponding angles are equal and corresponding sides are in a proportion. हम एक proportionality लेते हैं. Okay, for example, if I want to say that these two triangles are similar, not congruent, similar, so the angles should be equal. Sides का matter नहीं है. We do not care about the sides. यहाँ पे बस we care about the angles and the sides का proportion. So AB by PQ is equals to BC by QR equals to CD by RS equals to DA by SP. ठीक है, ये तो हुआ of your quadrilateral. बट आता है ट्राइंगल, सिमिलरिटी इन ट्राइंगल्स. सो हमको क्या करना होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स लाइक एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, angle B is equals to angle E, and so on. Angle C is equals to angle F. Once you have done this, आप इनके proportionality निकालते हो A और B. So AB is proportional, not equal. You're telling AB by DE will be equals to BC by EF will be equals to AC by DF. सो ऐसे आप सिमिलैरिटी को प्रूफ करते हो. अब जैसे हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया सिमिलरली वी इवन हैव फॉर सिमिलैरिटी. SSS क्राइटेरिया जहाँ पे सारे साइड्स प्रोपोर्शनल है टू ईच अदर. ओके, सो वी कैन से सिमिलर. सिमिलैरिटी का साइन इज लाइक दिस. देन SAS सिमिलैरिटी होती है where two sides are included angle, and then we have the AA similarity. AA similarity में we have by two angles, two corresponding angles से हम ट्राइंगल्स को करते हैं सिमिलर. ठीक है, उसके अलावा कुछ थ्योरम्स है, फोर इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है. फर्स्ट वन इज योर BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ओके, नेक्स्ट इज योर कॉन्वर्स ऑफ देन पाइथागोरस थ्योरम. एच स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड द कॉन्वर्स ऑफ इट. ठीक है, सो विद दिस हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन सॉल्व करना. ठीक है, let us do our questions. So question number 1 says that Panchami is standing on the ground and flying a kite at a vertical height of 22 meter from the ground. Length of the string to which the kite is connected is 29 meter. Panchami is holding the string roller 1 meter above the ground. Now we have to draw this entire scenario. ठीक है, सो पहले हम क्या करते हैं, लेट्स से दिस इज माय लाइन, दिस इज योर ग्राउंड. ठीक है, उसके बाद ग्राउंड से काइट की हाइट. ठीक है, काइट और स्ट्रिंग मतलब पंचामी से स्ट्रिंग की हाइट, एंड दिस बिकम्स योर ओके ग्राउंड. ये बनाते हैं. ठीक है, ये ग्राउंड है एंड फ्रॉम ग्राउंड कितना डिस्टेंस है. सो लेट अगर इसको लेबल करते हैं तो दिस इज योर P, this is here is your Panchami, correct? Panchami standing here. The length of the string is how much? 29 meters. Then उसके बाद on here we have our kite. उसके बाद kite से लेके ground का total distance is how much? Let's say this is Q, so total distance is 21 मीटर. ठीक है, और फिर एक ग्राउंड से ये स्ट्रिंग रोलर है, ये स्ट्रिंग रोलर से लेके ग्राउंड का डिस्टेंस है 1 मीटर. सो ये टोटल लेंथ बन जाता है 22 मीटर. सो ये आपका एक डायग्राम बन गया, क्विक डायग्राम. ओके, अब देखो question says that says one second. हाँ, question says that अब ये फिगर तो बन गया. Now we have to find the horizontal distance between kite and Panchami. Panchami
और काइट, ठीक है, पंचामी और काइट के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट वी हैव टू फाइंड। तो क्या यूज करेंगे, ऑब्वियसली हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। हमारा हाइपोटेन्यूस ऑलरेडी गिवन है, राइट। वी नो दैट द हाइपोटेन्यूस इज गिवन, हाइपोटेन्यूस इज 29 मीटर, ऑलरेडी प्रोवाइडेड है वो। उसके बाद नेक्स्ट साइड 21 मीटर है। अब हमको ढूंढना है तो बेस, तो हम कैसे ढूंढेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हम हमारे पास नहीं है, एच तो है, हमको ढूंढना है, लेट्स से पी ढूंढना है। सो पी क्यू है, राइट, वो पी क्यू विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, एच स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर विल बी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट। सो क्या होगा, पी क्यू विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ 29 और 22, करेक्ट। सो 29 स्क्वायर minus 21 square whole root, ठीक है। when you calculate it you will get it as 20 meter, so 20 meter is the horizontal distance। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, is it possible to have an isosceles triangle, isosceles right angled triangle such that the length of each of its sides is an integer होनी चाहिए साइड्स का, so is it possible or not, ठीक है। तो देखो क्या करना है हमको, लेट अस से ऐसा एक ट्रायंगल है, एक आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। इफ आई से आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब अगर दिस इज राइट एंगल सो दीज टू साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, ओके, ठीक है। सो लेट अस से वो दोनों साइड्स तो इक्वल ही होंगी एनीवे, सो लेट्स से कि ये साइड के है और ये साइड भी के है, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज विल बी द रूट ऑफ बोथ ऑफ द स्क्वायर, सो दैट मीन्स रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। ये कितना बन जाएगा, दैट बिकम्स योर रूट टू के। अब रूट टू के क्या है, इज दिस एन इंटीजर, नो दिस इज नॉट एन इंटीजर। सो क्या बोलते हैं, सच दैट द लेंथ ऑफ ईच साइड शुड बी एन इंटीजर, सो हेंस ऐसा ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, ओके। Now look over here. Next questions is that ABC is similar to PQR. Given, ठीक है, हमेशा आपको given data लिखना होता है। So what is given here? Given that triangle ABC is similar to triangle PQR. Okay. Ratio of perimeter of ABC to perimeter of PQR is 4:9. Okay. Sarah said that AB by PQ is equals to 4 by 9. Is that true or not? Justify your answer. अब देखो, अगर दोनों सिमिलर है सो आई कैन से दैट, अगर एक कांस्टेंट ले ले तो ए बी विल बी इक्वल्स टू के, एक कांस्टेंट ले लेते हैं ऑफ पी क्यू, करेक्ट। उसके बाद बी सी विल बी सिमिलर टू के एंड क्यू आर, एंड लास्ट विल बी ए सी विच विल बी कांस्टेंट टू पी आर। के हम एक कांस्टेंट ले रहे हैं बिकॉज इनके प्रोपोर्शन नहीं निकाल रहे, कांस्टेंट ले रहे हैं। अब पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, और सम ऑफ ऑल साइड्स विल बी व्हाट, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाय दूसरे साइड का पेरीमीटर पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। कितना रेशियो दिया गया है, 4/9 दिया गया। ओके, सो अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज अगर पुट करते हैं ऑफ दिस वैल्यू हियर, सो हमको मिलेगा ए बी बाई पी क्यू विल बी इक्वल्स टू 4/9, सो हेंस इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमको ढूंढना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ए बी सी एंड एरिया ऑफ पी क्यू आर का रेशियो। अब एरिया ढूंढना है, सो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर का हमने पेरीमीटर निकाला है रेशियो का, ओके। वी नो द ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया विल बी, हम रेशियो पेरीमीटर का रेशियो 4:9 है। सो एरिया क्या होगा, दोनों ट्रायंगल एज बोथ ऑफ देम आर सिमिलर, सो पेरीमीटर का स्क्वायर ले सकते हैं, करेक्ट। नाउ दैट विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट 16/81, दैट बिकम्स योर रेशियो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। इन द फिगर बिलो OPQ, ओके, OPQ आई गेस इट्स एंगल, ठीक है, एंगल OPQ is a, okay, triangle OPQ is a triangle with OP equals to OQ।
ये गिवन है, क्या इट इज दिस, हाँ, OP इज इक्वल्स टू OQ, RS इज द आर्क ऑफ एन सर्कल विद द सेंटर O, RS एक आर्क है, सेंटर O है उसका। ट्रायंगल OSR ट्रायंगल अगर बनाते हैं, सो इट विल बी सिमिलर टू OPQ। इज इट ट्रू और फॉल्स? कैसे? लेट्स से कि हम ऐसा एक इसको जोड़ देते हैं, आर और एस का एक ट्राइंगल बन जाता है। सो नाउ हमको चेक करनी है पॉसिबिलिटीज। सो इन ट्राइंगल OSR एंड ट्राइंगल OPQ हम क्या क्या ढूंढ सकते हैं? लेट्स सी। फर्स्ट वन, ROS और POQ दोनों इक्वल है, करेक्ट। एंगल ROS इज इक्वल्स टू एंगल POQ, करेक्ट। एंड लेट्स से वो x डिग्रीज है, व्हाई? बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अगर हम कोई एक और एंगल ढूंढे, सो बाय ए सिमिलैरिटी हम इसको ढूंढ सकते हैं। सो कैन यू सी दैट एंगल ORS, ठीक है, दिस एंगल ORS विल बी इक्वल्स टू एंगल OSR, क्योंकि O सेंटर है तो वो रेडियस हुआ, सो दोनों जो साइड्स है इन द ट्रायंगल वो इक्वल हो, ठीक है। दिस, ये आर्क है ना एक सर्कल का, दिस इज एन आर्क, ये पूरा RS जो है वो एक आर्क है। O सेंटर है तो मतलब OR OS क्या है? आपके रेडियाई हो, रेडियाई है, सो दो बेस एंगल्स इक्वल हुए, सो एंगल ORS इज इक्वल्स टू एंगल OSR, ठीक है। ये तो हो गया। नाउ कैन आई इक्वेट इट टू समथिंग एल्स? अब अगर दूसरे ट्रायंगल में देखें तो OPQ एंड OQP भी इक्वल होंगे, करेक्ट। कैन आई से दैट ऑल्सो इक्वल, बिकॉज दोनों इधर के भी दो साइड्स इक्वल है, करेक्ट। सो दैट मीन्स एंगल OPQ इज इक्वल्स टू एंगल OQP। सो ये टोटल कितना होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी कर लो ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इट विल बी 180 डिग्री माइनस x बाय 2, ठीक है। सो इफ यू फाइंड दिस यू कैन यूज द अबव स्टेप्स से हम प्रूव कर सकते हैं कि यस, दोनों ट्रायंगल OSR इज कॉन्ग्रुएंट टू OPQ बाय AA सिमिलैरिटी, ठीक है। नाउ सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। Now look over here. Next question says that are the two quadrilaterals similar? Yes or no? हमको ये फाइंड आउट करना है, quadrilateral दिया गया है। Now देखो, this quadrilateral, this is A, this is B, ठीक है। एंगल्स, ठीक है, एंगल्स तो ठीक है, एंगल सारे इक्वल है। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट साइड्स, साइड्स क्या डिफरेंस है? उन सबको स्क्वायर कर दिया गया, ठीक है। अब अगर स्क्वायर कर देंगे, सो द रीजन विल बी व्हाट? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर नॉट इन द सेम रेशियो। अगर हम ये लेट्स से दिस इज एक्स वाई, दिस इज पी क्यू, सो अगर हम कॉन्ग्रुएंट लेते भी हैं, सो एक्स बाय वाई इट वोंट बी इक्वल्स टू पी बाय क्यू, करेक्ट। सॉरी, लेट्स से दिस इज, अच्छा, नॉट लाइक दैट, रेशियो लेंगे ना एक्स वाई और पी क्यू का, करेक्ट। एक्स बाय वाई, सॉरी, एक्स वाई बाय पी क्यू का रेशियो वी कैन नॉट टेक इट अलॉन्ग विद इक्वेटिंग, लेट्स से दिस इज जेड, दिस इज समथिंग एल्स, ओके, यू कैन नॉट टेक इट प्रॉपरली, करेक्ट। सो आप इसके, क्योंकि स्क्वायर हो गया, सो यू कैन नॉट टेक द रेशियोज, सो सेम रेशियो नहीं मिलेगा आपको फॉर ऑल ऑफ देम, हेंस इट इज नॉट सिमिलर। अगला क्वेश्चन, ओके, अगला क्वेश्चन नहीं, अभी हम जाते हैं सर्कल्स के ऊपर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सर्कल्स का चैप्टर। सर्कल चैप्टर हमेशा से इट इज बीन डिफिकल्ट फॉर मेनी स्टूडेंट्स, बट इस साल आपको थोड़े बहुत फॉर्मूले है, सो इजी रहेगा। नाउ आर्क लेंथ, यू नो, सेंट्रल एंगल थीटा बाय 360 into pi into d, करेक्ट। देन सर्कमफ्रेंस इज 2 pi r। टैंजेंट, ये आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जब भी आपका एक सर्कल है, अगर आप उसका कोई भी टैंजेंट बनाते हो तो सेंटर से वो हमेशा 90 डिग्री बनाता है, अ राइट एंगल। डायमीटर इज 2 times of रेडियस, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, सबटेंड होता है। द परपेंडिकुलर ऑन द सेंटर ऑफ द कॉर्ड इज बाइसेक्टर, ठीक है। परपेंडिकुलर ऑन द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्टर होता है, ठीक है, और वाइस वर्सा। और एरिया इज पाई आर स्क्वायर, सेक्टर का एरिया इज 30/360 into पाई आर स्क्वायर। हम उसमें भी एरिया रिलेटेड टू सर्कल में वापस पढ़ेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है टैंजेंट्स के, ठीक है। नंबर ऑफ टैंजेंट, कोई भी टैंजेंट अंदर नहीं लाई कर सकता, वो सर्कमफ्रेंस को ही टच करेगा, ठीक है। 2 टैंजेंट्स बन सकते हैं बाहर पे, और हमेशा वो एक पॉइंट पे ही सर्कल को टच करेगा।
टू थ्योरम्स है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है। अगर रेडियस से लेके आपके टेंजेंट तक हमेशा 90 डिग्री बनेगा। लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। एक्सटर्नल से पी ए और पी बी दोनों इक्वल रहेंगे। ओके, दैट्स आर द टू थ्योरम्स। अब साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या है? कॉर्ड, यू नो, कॉर्ड अंदर होता है सेंटर से, उसको भी 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल द एंगल्स, ऑल द साइड्स लाई इनसाइड द सर्कल, ठीक है, और सारे वर्टाइसेस टच करते हैं। ऑपोजिट एंगल्स का सम इज 180 डिग्री, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स का सम इज 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री होते हैं। और इफ यू गेट सच सिनेरियो, एनी पॉइंट बी ऑन पी क्यू, पूरे पी क्यू पे अगर आप कनेक्ट करोगे तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। और इन सच अ सिनेरियो, ए बी प्लस सी डी विल गिव यू ए सी प्लस बी डी स्क्वायर, अगर हुआ तो। ओके, अब देखो इसके ऊपर बेस्ड अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, क्वेश्चंस इज दैट शोन बिलो इज अ सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ सर्कल है, एंड पी क्यू एंड पी आर आर द टेंजेंट्स। यूजिंग द ट्रायंगल्स क्यू ओ आर एंड पी क्यू आर, दो ट्रायंगल्स मैंने उन दोनों ट्रायंगल्स को लेके कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, मीन्स फिगर को तो हाथ ही मत लगाओ। We have to prove that the tangents PQ and PR are equal in length, हमको प्रूव करने के वो इक्वल है। So let us say कि बेस एंगल्स ऑफ क्यू ओ आर, क्यू ओ आर के बेस एंगल्स ये, ओके लेट मी चेक द कलर, ये एंगल और ये एंगल दोनों को ले लेते हैं एज थीटा, ठीक है। थीटा रेडियस है दोनों, करेक्ट, रेडियस है ना, सो साइड्स इक्वल है। ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ आर थीटा, ठीक है। अब हम लिखते हैं कि एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू एंड एंगल पी क्यू आर, ठीक है, ये दोनों कितने होंगे? अब ये पूरा थिंग तो 90 डिग्री बनेगा, राइट, पूरा 90 डिग्री बनेगा, पर उसमें अभी थीटा भी है। सो एंगल पी आर क्यू विल बी इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर एंड बोथ ऑफ देम विल बी इक्वल्स टू 90 minus theta, isn't it? Because each of the radius are perpendicular to the tangents. So in triangle QPR, QPR, इस ट्राइंगल में हम देखते हैं, इस पूरे ट्राइंगल में वी नो दैट PQ एंड PR आर इक्वल। PQ और PR ये दोनों साइड्स PR will be equal. Why? Because equal angles are in the triangle are equal. अब देखो PQR और PRQ ये दोनों बेस एंगल्स, हम दोनों को ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिया कि ये इक्वल है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर 90 minus theta. So in QPR also PQ will be equals to PR. Opposite sides equal होंगे, right? So that is what we have to prove. So PQ equals to PR is proven. Now नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शोन बिलो इज अ फिगर, अ सर्कल विद सेंटर O is inscribed inside triangle LMN. A and B are the points of tangency, मतलब उधर टच हो रहा है। We have to find angle ANB, ANB, दिस वी हैव टू फाइंड, ठीक है, इजी है, फाइंड आउट करते हैं। अब देखो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, वी कैन सी दैट द माइनर सेक्टर AOB, ये माइनर सेक्टर AOB कितना होगा? पूरा 360 होगा, 360 माइनस 260 कितना हो जाएगा? 100 डिग्री, ये हो गया आपका 100 डिग्री। अब ANB कैसे ढूंढेंगे? ANB कैन बी फाउंड आउट हाउ? इफ यू सी एक पूरा क्वाड्रिलैटरल बन रहा है, कौन सा क्वाड्रिलैटरल बन रहा है? क्वाड्रेटल ANOB, ANOB क्या बन रहा है? या AOBN, ठीक है, क्वाड्रेट बन रहा है, मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स ऑल एंगल्स विल बी हाउ मच? 360 डिग्री एंगल सम। अब इधर ए और बी टेंजेंसी के पॉइंट से तो ये बनाएंगे 90 डिग्री। ए एंड बी ढूंढना है, हमारे सारे एंगल्स हैं, दैट मीन्स वी कैन से इन quadrilateral, in quadrilateral ANBO, angle NAB and NAO 90 डिग्री है, so 90 डिग्री प्लस AOB 100 डिग्रीज प्लस OBN again 90 डिग्रीज प्लस एंगल ANB should be equals to
360 डिग्रीज। सो क्या बनेगा, 90 90 180, 180 और 100 बन जाएगा 180, 360 माइनस 180 विल गिव यू 80। सो देयरफॉर 80 इज योर आंसर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। a point a point is 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कल। ठीक है। अब देखो ये इजी, हम सर्कल बनाते हैं खुद से ही और फिर सॉल्व करते हैं। दे हैव गिवन दैट दिस इज ए सर्कल। ठीक है, सर्कल बन गया। अ पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर है। सो लेट अस से दिस इज अ मिड पॉइंट, ये रेडियस है 15 सेंटीमीटर का। अभी हमको फाइंड आउट करना है पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से 25 सेंटीमीटर अवे पे है। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर 25। अब वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द टैंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द सर्कल। शो योर स्टेप्स। टैंजेंट बनाना है हमको। टैंजेंट कैसे बनेगा, समवट इट विल बी समवेयर लाइक दिस, करेक्ट, समवेयर बाहर जाएगा। सो दैट मीन्स वी कैन फाइंड द टैंजेंट यूजिंग व्हाट, हम इसको अगर आप कनेक्ट करते हो अच्छे से, इफ यू डू इट लाइक दिस, तो ये बन जाएगा एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। सो फाइंड द लेंथ ऑफ द टैंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द, ये सर्कल का जो पॉइंट था ना, इसके थ्रू अगर टैंजेंट जाता है, सो हाउ विल बी द थिंग। ठीक है, वेट आई ड्रॉ वन मोर डायग्राम। सो बेसिकली दैट डायग्राम इट वाज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। कहाँ पे भी हो सकता है, हम अगर बाहर लेंगे, ओके, अंदर नहीं लेंगे। सो क्या क्या, इफ यू सी ओवर हियर, हमको फाइंड आउट करना है हमारा क्यू पी। क्यू पी इज नथिंग बट योर टैंजेंट बनेगा। ठीक है, वो टैंजेंट है पी, क्यू इज द पॉइंट ऑफ टैंजेंसी और पी पे कनेक्ट कर रहा है वो जो पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्कल। ओपी की पूरी लेंथ है 25। इफ यू सी, ये भी एक 90 डिग्री बनेगा, करेक्ट, 90 डिग्री बनेगा। हाइपोटेन्यूस है 25। सो क्या, हाउ विल यू फाइंड इट, विल फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू पी by doing 25 square minus 15 square. In total, that will give me 20 centimeter. So 20 centimeter is the length of the tangent. Okay. Next question. Shown below is a circle with center O, VP. Okay, wait. Circle is not there. Give me 1 minute. So this is your figure. So in the below, the center is given as O. Okay, center is O. VP is given as 34. PR is 36. RS is 17. U, W, Q, and S are the points of tangency. We have to find the area of the shaded image in the टर्म्स ऑफ पाई। ठीक है, अब वी नो दैट, हमको पता है कि आर क्यू, इफ यू लुक एट आर क्यू, ये लेंथ पूरी आर क्यू की, वी कैन से दैट आर क्यू विल बी इक्वल्स टू आर एस and both of them will be equal to 17 centimeter. Why? Because the lengths of tangent from an external point equal होंगे. So RS, RQ और RQ and RS will be equal because external points से बनाए गए, so they both will be equal. दोनों 17 होंगे। ठीक है, ये ढूंढ लिया हमने। अब PQ, PQ कैसे ढूंढेंगे, पूरी लेंथ PQ, हाउ विल वी फाइंड इट। हमको पता है कि इट इज गिवन दैट पी आर की जो वैल्यू वो है 36। सो वी कैन डू 36 माइनस 17। ठीक है, माइनस 17 कर लेंगे, दैट इज ऑफ आर क्यू। ठीक है, सो कितना मिल जाएगा हमको, दैट विल गिव अस नथिंग बट 19 सेंटीमीटर। सो पी क्यू की लेंथ इज 19 सेंटीमीटर। नाउ वी कैन इवन से दैट, अब सेम लेंथ से एज हम लोग कह सकते हैं कि पी क्यू विल बी इक्वल्स टू पी डब्ल्यू, बोथ विल बी 19 सेंटीमीटर बिकॉज एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट बनाया। सो पी डब्ल्यू एंड पी क्यू आर इक्वल। अब वी डब्ल्यू की लेंथ ढूंढते हैं। वी डब्ल्यू की लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगेन सेम, वीपी इज 34। सो 34 माइनस पी क्यू दैट इज 19, सो मिल जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी मिल गया। अब देखो एंगल, इफ यू लुक एट हियर, एंगल VWO, एंगल VWO वो एक 90 डिग्री होगा। एंड वी यू ओ ये भी एक 90 डिग्री होगा। वाई? बिकॉज टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल विल बी व्हाट, इट विल बी 90 डिग्री। सो यहाँ पे भी 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री हो जाएगा ड्यू टू टैंजेंट्स। सो वो दोनों एंगल्स हो गए 90 डिग्री।
अब with this we can say that angle WVO is also 90 degree, हमको already given है figure के अंदर. So we can say that सारे angles हो गए 90 degree. That means VWOU हो जाता है एक square. So we can say that it is a square. ठीक है, वो एक square हुआ. So we can say that the radius of the circle UO will be equals to WV because both of them are the radius, sorry both of them are sides, so क्या हो जाएंगे, square है वो, so that will be 15 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हमको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन जो सेमी सर्कल है. तो सेमी सर्कल का एरिया वी कैन फाइंड इट बाय 1/2 पाई की वैल्यू एज इट इज रखनी है इंटू 15 इंटू 15 1/2 pi r square. That gives us nothing but 112.5 pi centimeter square. So ये हो जाता है आपका एरिया. एंड विद दिस हमारा सर्कल्स भी हुआ खत्म. अब चलते हैं हमारे लास्ट चैप्टर के ऊपर, दैट इज योर सर्कल एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स. सो पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं. वी नो दैट रिंग, अगर आपको रिंग जैसा, दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूले. अगर आपको रिंग जैसा स्ट्रक्चर मिलता है सर्कल में, पेरीमीटर विल बी 2 पाई बड़ा वाला रेडियस प्लस छोटा रेडियस, एंड एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर. ठीक है, ये दीज आर द टर्म्स, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, सेकंड टेंजेंट, एवरीथिंग. ठीक है, उसके बाद सेमी सर्कल का एरिया इज 1/2 पाई आर स्क्वायर, अभी जस्ट सॉल्व किया, एंड पेरीमीटर इज पाई आर प्लस 2r. सेक्टर हम ढूंढते हैं थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, और लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. एरिया सर्कमफ्रेंस आपको ऑलरेडी पता है. एरिया ऑफ सेगमेंट इज थीटा by 360 into pi r square minus 1/2 r square sin theta, or you can say that area of sector minus area of the corresponding triangle. ठीक है, so नेक्स्ट आपका इजी वे है हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ एवरीथिंग. अगर आपको पूरा एरिया ऑफ टी निकालना है तो पी और क्यू को ऐड करोगे, मीनिंग हम एरियाज को कंबाइन करेंगे. ठीक है, सो सर्कमफ्रेंस पता, अगर आपको ऐसा फिगर दी जाती है, सो यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन. सारे सर्कल्स का निकालोगे, माइनस करोगे स्क्वायर के उससे. ठीक है, सो दैट्स हाउ यू सॉल्व इट. हम क्वेश्चंस पे चलते हैं. क्वेश्चन सेज दैट, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन सेज the figure below is a part of a circle with center O center है, और ये पूरे पार्ट का एरिया है 1250 पाई बाय 9 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 10 सेक्टर्स आ रहे हैं. ये 10 सेक्टर्स दी गए हैं. ओके, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा इन डिग्रीज. अब देखो, वी हैव टू इक्वेट द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द फिगर टू द एरिया ऑफ सेक्टर. ये एक सेक्टर है, राइट, पूरा एक सेक्टर है. So we know that area of sector is what? Theta. We know that it is theta by 360 degree into pi r square. हमको pi के टर्म्स में दिया, so we'll write it as it is 1250 pi divided by 9. अब रेडियस क्या होगा? रेडियस आप वो देख सकते हो, ओ सेंटर है, तो दैट मीन्स रेडियस विल बी 20 सेंटीमीटर. सो दैट मीन्स 1250 pi by 9 is equals to theta by 360 into pi r square into 20 का whole square. Now theta is the angle of the entire sector, पूरे सेक्टर का एंगल, दैट इज थीटा. सो इसको आप सॉल्व करोगे, सब कैंसिल करो, पाई पाई कैंसिल करो, व्हाट विल यू गेट? थीटा विल बी इक्वल्स टू 125 डिग्री. यू कैन फाइंड इट आउट. ठीक है, अब बीटा की वैल्यू क्या होगी? हमको बीटा निकालना है. थीटा तो ये पूरी वैल्यू है, राइट, थीटा इज दिस फुल थिंग. अब 10 सेक्टर्स में डिवाइडेड है, 10 सेक्टर्स में डिवाइडेड है, तो 125 डिवाइडेड बाय 10 करो, दैट गिव्स यू 112.5 degrees. So that becomes your value of beta. Okay, next question. Next question says that a cow is tied at one of the corners in the circle, in the corners of a square shed. The length of the rope is 22 centimeters a meter. The cow can only eat the grass outside the shed as shown. ये figure बनाई गई है. What is the area that the cow can graze? Show your steps. Answer should be in the terms of पाई. ठीक है, अब टोटल एरिया पहले हम ढूंढेंगे. ठीक है, ये पूरे चीज का टोटल एरिया विल बी हाउ मच?
If I want to find the total area of the figure, it will be what, 3 quarters of sector. ठीक है, 3 quarters बन रहे सेक्टर के, यू कैन सी इन द फिगर। ठीक है, तीन तीन सेक्टर बन जाएंगे। सो 3 quarters ऑफ सेक्टर, कितना रेडियस है दोनों का, रेडियस विल बी 22 मीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ द रोप। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। प्लस वी कैन से दैट 2 into 1 quarter सेक्टर विद रेडियस 2, एक 2 सेंटीमीटर के रेडियस का भी एक क्वार्टर बन रहा है। ठीक है, कैन यू सी ओवर हियर, एक बन रहा है ना, इफ यू कैन सी एक सेक्टर बन रहा है। ठीक है, सो दो बन रहे हैं वैसे, सो दोनों का है 2 सेंटीमीटर। सो 2 into 1 quarter, 1 quarter सेक्टर विद रेडियस कितना है हमारा, 2 मीटर। ठीक है, ये पहला ये स्टेटमेंट लिख दी हमने। अब देखो, फाइंड द टोटल एरिया। अब टोटल एरिया निकालते हैं। 3 quarters है। ठीक है, रेडियस 22 है, सेक्टर फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें। अब देखो 3 quarters है तो 3/4 इंटू, आंसर पाए में ही लिखना है, सो पाए ही लिख दो, इंटू 22 का स्क्वायर। ठीक है, 3/4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ इंटू, ये सॉरी प्लस करेंगे, 2 इंटू कितने हैं, 1 quarter है, 1 quarter इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, 2 स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, इंडिविजुअली सॉल्व करो इसको। 4 और 22 इफ वी कैन कैंसल, 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। सो विल गेट इट एज 363 पाई प्लस ये पूरा बन जाएगा, ये 2 तो कैंसिल हो गया, दिस बिकम्स 2 पाई। 2 पाई, सो दैट होल थिंग ऐड करो, कितना आ जाएगा, 365 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर करेक्ट आंसर। कि मतलब इतना ही एरिया काउ कैन ग्रेस। ठीक है, हो गया कैलकुलेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शोन बिलो इज अ सर्कल, शोन बिलो इज अ सर्कल विद मल्टीपल कॉर्ड्स। ठीक है, द सर्कल इज जस्ट शोन दैट कि उसके मल्टीपल कॉर्ड्स है। वन ऑफ द कॉर्ड इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, एक कॉर्ड इसमें से जो है वो इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, वो उन्होंने बताया। ओके, नाउ next part is find the measure of the angle subtended by a 4.7 centimeter arc। अगर एक 4.7 सेंटीमीटर की आर्क है at the circumference of the circle, कितना एंगल सबटेंड करेगा, that we have to find। नाउ हमको पता है कि जो लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज द डायामीटर। ठीक है, सो डायामीटर की वैल्यू कितनी होगी, दैट इफ वी फाइंड आउट, सो डायामीटर वी नो इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक है, लॉन्गेस्ट वैल्यू क्या है इसमें, इट इज 14.1 सेंटीमीटर। ठीक है, सो वो कॉर्ड है लॉन्गेस्ट, सो दैट मीन्स दैट इज द डायामीटर। 14.1 किसके अंडर, पी क्यू, सो वी कैन से दैट पी क्यू, दिस इज योर डायामीटर। ठीक है, अब डायामीटर मिल गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सबटेंड बाय 4.7 पाई सेंटीमीटर आर्क। एक आर्क है जिसके आ लिया 4.7 पाई सेंटीमीटर और सेंटर एज थीटा, एंगल जो सबटेंड करेगा सेंटर दैट इज थीटा। सो व्हाट इक्वेशन वी विल यूज आर्क के लिए, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। सो थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई एज इट इज, एंड आर, आर क्या होगा, रेडियस डायामीटर 14.1 है, सो 14.1 बाय 2। कैंसलेशन करो, इसको कैंसिल हो गया, सो थीटा विल बी इक्वल्स टू 4.7 पाई। ओके, सो 4.7 पाई इज योर थीटा, थीटा बिकम्स 4.75। ठीक है, नाउ सॉरी इसकी, ओ सॉरी सॉरी 4.7 पाई इज देयर एंगल सबटेंड, आर्क की वैल्यू ना, हाँ, तो थीटा विल बी इक्वल्स टू 120 डिग्रीज, 120 डिग्रीज द थीटा। सो नाउ एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज ऑलवेज द डबल एट एनी अदर पॉइंट। सो दैट मीन्स अभी किधर बन रहा है हमारे उसमें, ऑन द सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है। सो 1/2 इंटू हाफ करेंगे, दैट बिकम 60 डिग्री। सो 60 डिग्री का एंगल विल बी फॉर्म्ड। So, next question. Shown below are three concentric circles. Okay, shown below are three concentric circles. Now, center O, tangent of the second circle is AB. ठीक है, AB की वैल्यू इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन टर्म्स ऑफ N।
एंड ड्रॉ अ रफ फिगर। ठीक है, पहले एक रफ फिगर बनाते हैं। इफ आई कनेक्ट ओ एंड ए, ओ और ए को कनेक्ट कर दिया, ओके, लेट्स से दिस इज x सेंटीमीटर, और ओ और बी को भी कनेक्ट कर दिया, सो वी विल गेट दिस एज 90 डिग्री। ठीक है, हमको 90 डिग्री मिलेगा। नाउ पाइथागोरस थ्योरम से ओ बी की वैल्यू कितनी होगी? ओ बी इज द हाइपोटेन्यूज, सो ओ बी विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर, दैट इज 25। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ द सेकेंड सर्कल, सेकेंड सर्कल का एरिया कितना होगा? पाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 25, करेक्ट, माइनस पाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दैट गिव्स मी 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द area of the second circle, correct, that is the area of the shaded region। ठीक है, so 25 pi centimeter square will be your answer of the shaded region का area। now second circle का क्या होगा? pi x square centimeter square, और largest circle का होगा pi x square plus 25 centimeter square। so shaded region का कितना होगा? subtract करके you will get 25 pi centimeter square। So with this we have completed with our today's session। Thank you so much for watching students। आज हमने आपका ज्योमेट्री का भी पूरा सेक्शन कंप्लीट किया। अब लास्ट सेक्शन बचा है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। फिर ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम करेंगे एक सैम्पल पेपर डिस्कशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करो चैनल को राइट अवे। आई विल बी सीइंग यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।